I'm just an ex fighter pilot, all right, from the Pakistan Air Force. It's ups and downs, but I have enjoyed my life thoroughly with Pakistan Air Force. And it is said about Pakistan Air Force that you start from cradle to grave. I will always cherish the memories that I have had with Pakistan Air Force, and whatever friends, whatever that I am today is because of Pakistan Air Force. And जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरी acquaintances हैं, जो मेरी experiences हैं, वो सब they are all connected to Pakistan Air Force. और बल्कि मेरे बच्चे जो हैं और मेरी फैमिली जो है वो भी बाज़ दफ़ा वो जाते हैं कि other than Air Force you have nothing to talk about, but yes, Air Force is Air Force. Let me tell you one thing right at the onset, that जो भी आपको मीडिया से और ISPR से इंफॉर्मेशन आपने गैदर की है अबाउट एयरफोर्स has been 100% true. People do ask questions like whether it was JF-17, whether it was F-16, whether it was a missile shot or whether it was a gunshot or things like that. But at the end of the day, whatever the Air Force says is 100% true. In that, they've said that it was shot by JF-17. Yes, it was shot by. मैं कभी भी सोच भी नहीं सकता कि Air Force इस मामले में, unlike other countries and other air forces, and needless to say that I'm talking of Indian Air Force, जो कि बहुत बातें करती है. I have never experienced Air Force जो प्रोटोकॉल है वो कभी झूठ बोलते हुए. So मैं क्योंकि अब Air Force में नहीं हूँ, बट अगेन मेरी कुछ ना कुछ तो उनके साथ ताल्लुक़ रहता ही है. बट जो भी आपने मीडिया से सुना है, इट हैज़ बीन प्रूवन 100% ट्रू. It's a very important question. I've been instructor in the academy also for about 3 years when I was a young flight lieutenant. And the standard of Pakistan Air Force is because of its demand and its quality that we demand from our people. It is generally said that even if you make a monkey sit in the aircraft, he'll be able to fly. And it is true, but then you'll have to give him maybe 2,000 hours for him to make him fly. हमारे स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बड़े पेक्यूलियर हैं. हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स से हटकर हमारी जो एट्रिशन है वो बहुत हाई है. उसकी वजह यही है कि वी डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन स्टैंडर्ड्स. जो हमारी एकेडमी से लड़के निकलता है वो एक पॉलिश्ड ऑफिसर होने के साथ साथ एक अच्छा पायलट होना ज़रूरी है उसको. एंड I can narrate numerous examples where people have been suspended from flying on slow progress with very good background. Background से मुराद मैं उनका family background की बात कर रहा हूँ. Air Marshals के बच्चे from kids from all over the walks of life. जो कि आप जिनके बारे में आप ये सोच सकते हैं कि जी ये तो बंदा सस्पेंड हो नहीं सकता. बट फ्लाइंग इज अ प्रोफेशन. आई ऑलवेज यूज्ड टू से दैट फ्लाइंग इज अननेचुरल टू ह्यूमन बीइंग्स. अदरवाइज it was not difficult for God Almighty to give wings to human beings कि जब fly भी कर लेना. इसीलिए it is unnatural. So anybody who is unable to fly, because I'm a pilot myself, so I say that
if somebody is unable to fly, that means that he is more closer to nature. So a fighter pilot or a pilot is more closer to unnatural things than nature. But it is because of the standards that we don't compromise on that makes Pakistan Air Force as one of the best air forces in the world, and we have proven it time and again at different ventures. बेसिकली जब भी आपको कोई चीज़ मिल जाती है ना, जब तक आप उसको देख रहे होते हैं किसी और के छाती पर, किसी और के उस पर, उस वक्त तक आपको लगता है कि यार, बट लाइक रैंक्स का भी यही होता है कि आप जब फ्लाइट लेफ्टिनेंट होते हैं, यू लुक अप टू अ विंग कमांडर, यू लुक अप टू एन एयर कमोडोर, यू लुक अप टू स्क्वाड्रन लीडर, एंड यू से दैट ओह यार दिस, ये बड़ी अचीवमेंट है। मेरा ख्याल है कि मैंने सिर्फ तंगदेही से बड़े उससे काम किया है, और कोई ख़ास ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें कि नेचुरली माय सुपीरियर्स हैव कंसिडर्ड मी फॉर दिस तमगा, जिसका कि मैं शुक्रगुजार हूँ उनका। बट आई पर्सनली फील दैट सिर्फ तंगदेही से काम किया मैंने एयरफोर्स में। सबसे बड़ा फर्क, क्योंकि अब मैंने दोनों लाइफ्स देख ली हैं, सबसे बड़ा फर्क जो है वो है डिसिप्लिन का। जो डिसिप्लिन है वो हमें इनग्रेड कर दिया जाता है, हमें मतलब ओढ़ना बिछोना जो है वो डिसिप्लिन होता है। आई कीप डिमांडिंग द सेम फ्रॉम माई चिल्ड्रन, आई कीप डिमांडिंग द सेम फ्रॉम माई ग्रैंड चिल्ड्रन, माई सोसाइटी। if something has to be done one way, then it has to be done that way. मतलब अगर कहीं पे आपने पार्किंग गाड़ी की उस तरह करनी है तो उस तरह करनी है, मतलब उसमें क्या कंफ्यूजन है। ये समझाना probably मेरा ख्याल है कि मैं एक सिविलियन को थोड़ा सा मुश्किल होता है, जबकि एक यूनिफॉर्म पर्सन जिसको कि सिर्फ डिसिप्लिन ही उसके ऊपर वो किया हुआ है, उसकी वजह से थोड़ा सा मेरे ख्याल से एक तो मेजर फ़र्क ये है। फिर जो मैं जब सिविल में आया और मैंने सिविल में देखा कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी मुझे कि मैं एक बंदे को देख रहा हूँ, उससे मैं खड़ा होकर बात कर रहा हूँ और वो एक तीसरे बंदे के बारे में कुछ नेगेटिव बात कर रहा है। बट देन जब वो नेगेटिव बात कर रहे हैं जिसके बारे में बात हो रही थी, ही पॉप्स इनटू दैट कन्वर्सेशन, तो आपको ऐसे लगता है कि आप बात करना शुरू करते हैं, ओए यार किधर थे तुम, मुझसे मिल ही नहीं रहे थे इतने अरसे से। बंदा कहता है कि यार अभी तो इसके बारे में इतनी नेगेटिव बात हो रही थी, आप मतलब तो जाहिर, और वो मेरा ख्याल है कि वी आर नॉट टॉट कि आपने अपने आप के जज्बात को कैसे छुपाना है, अपने नेगेटिविटी को कैसे छुपाना है। जो नेगेटिव है वो नेगेटिव, ब्लैक इज ब्लैक एंड वाइट इज वाइट, देयर इज नो ग्रे शेड। वेयर एज जब आप बात करते हैं सिविल उसकी, तो आप उसमें ऐसे लगता है कि देयर इज मोर ऑफ ग्रे शेड देन, इसीलिए शायद फौजी जो है वो और ख़ास तौर पे जो हमारी फाइटिंग फोर्स है उसमें ये ब्लैक और वाइट में मतलब there is no difference. All over the world है या पाकिस्तान में? I think it is all over the world. I've been to Indonesia. I've been working there for 1.5 years almost. Studied there, or did my staff course from there, and there were people from Australia, from America, from Singapore, from Malaysia, from Brunei, from Saudi Arabia. एंड प्रॉबली जो डिसिप्लिन का आंसर था वो सब में उसी तरह था, किसी में कुछ कम, किसी में कुछ ज़्यादा, किसी के कुछ थोड़े से वो, बट ओवरऑल आर्म फोर्सेस में डिसिप्लिन इज इंग्रेड। There has been numerous memorable moments in the fighter flying, ups and downs। एयर फोर्स में
इतने ज़्यादा होते हैं कि जिसका नहीं तो अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आप क्या किस चीज़ के ऊपर वो करना चाह रहे हैं। अनलकीली यादगार unluckily we are trained for a war and but होता ये कि किसी की किस्मत में वॉर आती है और किसी की किस्मत में नहीं आती। ड्यूरिंग माई टाइम फ्रेम वी हैवंट हैड a war, but when I was deployed in Peshawar, I was posted in Peshawar. We used to fly on the Western Front, and on many occasions we actually saw bombing being taking place at Jalalabad. जब विजिबिलिटी बहुत क्लियर होती थी तो जहाज तो नज़र नहीं आते थे, बिकॉज फाइटर एयरक्राफ्ट आर वेरी स्मॉल इन साइज, सो वो नज़र नहीं आते थे। बट जब बॉम्ब इम्पैक्ट करता है ज़मीन के ऊपर तो प्लूम जो क्रिएट करता है वो प्लूम नज़र आता था। उससे आपकी हार्ट बीट, आपका एड्रेनलिन जो है वो पंप करता है, एंड देन यू एक्चुअली गेट एक्साइटेड। देयर यूज्ड टू बी इन्यूमरेबल मोमेंट्स जबकि हम बॉर्डर पे इधर होते थे और उस साइड के ऊपर बॉर्डर पर रशियन एयरक्राफ्ट होते थे, बट देन आवर रेडार्स वुड नॉट परमिट अस टू गो टू देयर साइड एंड देयर रेडार्स probably would not permit them to come to our side, but जो हमारे वो एड्रेनलिन था वो पंप करता था, और those were really I really wanted to get into that. And same way then when I was actually commanding my squadron and Masoor, उसमें I got the opportunity to fire a live missile. तो मैं उस वक्त यही कह रहा था कि अब क्योंकि मैं एक्चुअल ऑपरेशनल फाइटर फ्लाइंग से फारिग होने वाला हूँ, तो लेट मी एटलीस्ट गेट द अपॉर्चुनिटी टू फायर अ मिसाइल। बिकॉज गन्स फायर करना, रॉकेट्स फायर करना, बॉम्ब्स फायर करना, बॉम्ब्स ड्रॉप करना, ये तो हमारे ट्रेनिंग के अंदर शामिल होता था, बट जनरली हम लाइव मिसाइल्स नहीं फायर करते थे। तो आई गॉट द अपॉर्चुनिटी एंड आई फायर्ड इट ऑन सोमियानी रेंज एंड विच एंडेड अप टू बी DH. It was a very memorable moment for me, because I was the only squadron commander who was actually firing a missile. असल में it is very difficult to be a GDP. A GDP, a general duty pilot, is a general duty. He's considered to be fit for everything. He's trained for everything, like instructional, like operational, like diplomatic assignments. Like I've been lucky to be on a diplomatic assignment also to South Africa for 3 years. As an air attaché, and it is कहते हैं ना कि मैं हमेशा यही कहता हूँ कि कोई ऑफिसर में या GDP में कोई स्विच नहीं होता कि उसको स्विच ऑफ किया तो तुम फौजी से तुम डिप्लोमेट बन जाओ, बिकॉज डिप्लोमेट इज अ डिप्लोमेट एंड फौजी इज अ फौजी. फौजी इज yes or no. Diplomat is saying no in a way that it doesn't sound like a no. या वो आपको कहते हैं जनरली कि डिप्लोमेट जो है वो हेल के बारे में या दोज़ख के बारे में इस तरह से डिस्क्राइब करेगा कि आपका दिल करेगा कि दोज़ख को एक दफ़ा विजिट किया जाए. तो वो उसके पास कोई नेगेटिव चीज़ नहीं होती, वो हर चीज़ को पॉजिटिव वो करता है. जबकि एक फौजी जो है वो या तो जिस तरह मैंने कहा ब्लैक एंड वाइट, तो या वाइट है या ब्लैक है, उसमें ग्रे शेड नहीं है. जबकि डिप्लोमेट के लिए तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता था कि मतलब आज फौजी हैं हम, पोस्ट हो गए टू साउथ अफ्रीका, वहां पर जाकर हम डिप्लोमेट बन गए, एंड देन व्हेन यू कम बैक and you resume your duties as a normal officer in the Air Force, then you switch that diplomat switch off and become Fauji again, and yes right or yes or no, white and black. So it's a very demanding thing. But having said that, demanding अपनी जगह पर है, but it is very interesting also because you are being trained for it. You are every day you learn.
first of all, learning never stops. Learning is such a thing. जब इंसान जिस तरह अभी पिछले दिनों इमरान खान का एक इंटरव्यू आया था, उसमें भी उन्होंने कहा कि लर्निंग तो सिर्फ कब्र में ही ख़त्म होती है, मरने के बाद ही ख़त्म होती है. एंड आई फुली एग्री विद हिम. I agree on many points with him, but this is one thing that I agree with him, that learning never stops, and you should never feel shy in learning from your subordinates. You should never feel shy in learning from your youngsters, from your kids, from your grandkids, because they might be coming up with some bright idea which may not have come across your mind. So असल में एयरफोर्स या कोई भी एक अच्छी फोर्स जो होती है, उसमें एक बिल्डिंग ब्लॉक अप्रोच होती है. बिल्डिंग ब्लॉक अप्रोच इज दैट यू स्टार्ट टू लर्न फ्रॉम, मतलब जब आप एबनिशो होते हैं तो आप एक इन्फीरियर सिस्टम से सुपीरियर सिस्टम की तरफ जाना शुरू करते हैं. तो वो बिल्डिंग ब्लॉक अप्रोच प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन द ट्रेनिंग करिकुलम, training system of any air force, and same thing is followed in Pakistan Air Force also. And क्योंकि आपका वो ग्रेजुअल वो होता है, तो एक जिसे कहते हैं ना बहुत लंबी लीप वो देना अवॉइड करते हैं बेसिकली, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज गोइंग फास्टर देन द ह्यूमन बीइंग इज थिंकिंग. तो आपको अगर एकदम से जंप लगाकर, इसीलिए मैं कहता हूं कि when they say that जी ये जहाज इंडिया के पास आ गया, वो जहाज इंडिया के पास आ गया, it will take at least 5 to 6 years for those aircraft to get operationalized, for their system to get acquainted with those systems. It will not be that जहाज क्योंकि बॉर्डर क्रॉस करके आपके एरिया में आ गया है तो वो आपका हो गया है, and you are now ready to go and fly to the best of the abilities. अभी भी हम जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी में को मास्टर करने में it always requires a training. And जो पाकिस्तान एयरफोर्स की खास तौर पे ट्रेनिंग सिस्टम है, it is known all over the world. Let me share with you that जो हमारे पास लोग कोर्सेस करने के लिए आते हैं, फ्लाइंग की कोर्सेस करने के लिए आते हैं, कॉम्बैट कमांडर्स कोर्स करने के लिए आते हैं, या एयर वॉर कोर्स करने के लिए आते हैं, स्टाफ कोर्सेज करने के लिए आते हैं, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में जो कोर्सेज करने के लिए आते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको रिकग्नाइज किया गया है. इस तरह के जो कोर्स यहाँ पर लोग करने के लिए आते हैं ना, जब ये वापस जाते हैं, दे आर श्योर शॉट 2-star generals, 3-star generals. एंड उनके लिए एक ये तमगा होता है कि अच्छा, you did your course from Pakistan, is it? Okay. So they are looked up to like this, कि आप पाकिस्तान से कोर्स करके आए हैं. Because we don't treat foreigners as foreigners. We treat them as our students, and we treat them as our own people. हम ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स को मेंटेन हमने इस तरह किया हुआ. But there are so many things that are going on. I think क्योंकि एक नॉर्मल इंटरव्यू है, बट जो इस वक्त टेक्नोलॉजी है उसमें सिविल इश्तराक जो है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है, इस वक्त भी चल रहा है. And but due to reasons well known to everybody, वो उस तरह से डिस्क्लोज नहीं किया जाता कि कितना हो रहा है. But having said that, let me tell you that civil is also doing a wonderful job, and they are I think leaps and bounds ahead of
इन फ्यू हमारी जो शॉप्स हैं उनसे बहुत बेहतर भी हैं, काम कर रहे हैं। आई थिंक हमारे जो सिस्टम हैं वो इन प्लेस हैं, but the other day I was traveling with my nephew, and he said that मामा आप ये मुझे बताएं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू क्या है। सही। और मैंने उसके ऊपर उसको यही जवाब दिया, मैं कहा यार यू माइट थिंक दैट ये क्या बात की आपने, बट दिस इज माई पर्सनल व्यू, and not that Pakistan has not developed. Pakistan has developed a lot, because if you look at Pakistan, what was Pakistan in 1947? What we were promised and what we were given by Britishers, by Indians. We had very limited resources. I remember somebody narrating this to me that हमने एयरफोर्स जो शुरू की थी उसमें कीकर के दरख्तों के नीचे टेबल डालकर बैठते थे, और जो कीकर के जो पिन्स होते थे वो पिन्स हम कॉमन पिन के तौर पे इस्तेमाल किया करते थे। तो फ्रॉम देयर टुडे वी आर अ डेवलप्ड एयरफोर्स एंड डेवलप्ड कंट्री। वी आर डूइंग एवरीथिंग, वी आर मेकिंग cars, we are making aircraft, we are one of the few who are making fighter aircraft. Okay, sir. And we are exporting it to our friendly countries. But it is not commensurating with the population that we have. यानी हमारे पास हर चीज़ in place है. We have the best of these universities available, we have the best of the colleges available, we have the best of the schools available, we have the best of the infrastructure available, but not commensurating with the populace that we have, with the population that we have. So our biggest issue is that when we started in 1947, what was our strength? About 37 million, ऐसे ही कुछ थी। मैं 100% राइट नहीं होगा, हो सकता है 40 मिलियन। आज हमारी पॉपुलेशन क्या है? 20 मिलियन। सेंसस जो है वो काफ़ी पुराने हुए हैं, बट अभी जनरली बात कर रहे हैं आप 220 मिलियन, राइट? सो वी हैव ऑल द रिसोर्सेज अवेलेबल, वी हैव द यूथ। हम इसी को हम यूटिलाइज कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास हर एक फर्द के साथ 2 हाथ लगे हुए हैं, उसके साथ एक पेट भी लगा हुआ है, मगर 2 हाथ लगे हुए हैं। अगर हम उन हाथों को सही तरह से यूटिलाइज कर पाए, वी कैन डू वंडर्स। एंड आई थिंक हम अपने आप को, अगर हम पॉजिटिव, मैं आई एम अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक टाइप ऑफ पर्सन, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि चीज़ को पॉजिटिवली देखो। व्हेन यू लुक एट थिंग्स पॉजिटिवली, यू आर, कहते हैं ना कि अल्लाह ताला गुमान के नज़दीक तरीन है। अच्छा गुमान करो कि यस वी विल बी एबल टू अचीव इट, वी विल बी एबल टू डू इट, एंड वी विल बी एबल टू डू इट। Do it with sincerity, do it with conviction, do it with dedication, you'll be able to achieve it. This is my message to the youth right now. I think इसमें civil sector can play a very, very vital role. I've been to North, वहाँ पर इतने अच्छे sites हैं हमारे, इतनी अच्छी जगह हैं हमारे पास, जिसको कि हम एक्सप्लोर कर वहाँ पर हम ग्लाइडिंग, इस तरह की चीज़ें हम बहुत कर सकते हैं। एंड आई थिंक वी कैन अट्रैक्ट टूरिज्म ऑल्सो with the type of terrain that we have. I remember in Indonesia, I was giving a presentation about my country, Pakistan, and during the presentation, I said that we have temperatures ranging from +50 to -40, and the Australian friend, my course mate who was doing the course, he said that he didn't believe it, because Australia, if you see, it's an island, and it's a big area.
but I don't think they have anything more than 3,000 feet of altitude above sea level. उनके पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर हिल्स हो 3,000 फुट से 3,500 फुट से ज़्यादा. उनके पास रिवर सिस्टम नहीं है बिकॉज उनका मतलब नेचुरल रिवर सिस्टम नहीं है. हमारा नेचुरल रिवर सिस्टम है. हमारे हिमालयाज से शुरू होते हैं हम, और हम मतलब बिगेस्ट जो हमारी रेंजेस हैं वो हमारे एरिया में पड़ती हैं. हमारे पास डेजर्ट्स हैं, हमारे पास कोस्ट है, हमारे पास हिल्स हैं, हमारे पास यू नेम इट एंड वी हैव इट. बट फ्लाइंग को बिल्कुल आपकी अप्रोच इज 100%. आई थिंक इफ वी गिव इंसेंटिव टू द प्राइवेट कंपनीज, they would because there would be people who would be interested to go for a ride on a Mashak, on a Cessna, just to have a view of Karachi. I think बहुत उसमें स्कोप है. एज अ प्रोफेशन तो अपना हेल्थ तो एक अपनी जगह पर है, बिकॉज ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपने अपने हेल्थ का वी गो थ्रू द मेडिकल एवरी 6 months. Even after getting out of Air Force and when I was flying for Shine Air International, it was mandatory for me to go for a medical every 6 months. तो एक तो मेडिकल है, फिर स्टडीज़ है. बट मैं आपसे वो बात करूँगा जो मैं अपने बेटे को के लिए मैं सजेस्ट करूँगा. मेरा ख्याल है कि फ्लाइट को एज अ प्रोफेशन ज़रूर लेना चाहिए, बट आफ्टर हैविंग डन योर ओन बेसिक एजुकेशन इज एटलीस्ट to me is a BS, and you can go any further than that, but basic education BS ज़रूर करना चाहिए, और उसके बाद फिर आप फ्लाइंग प्रोफेशन में जाएं. उससे आपके होराइजन जो है ना वो होगा. यू शुड बी a better citizen of the country than anything. You should be able to teach people, and if you are only an O level, I would not undermine the standards of O levels. या इंटर करके आप फ्लाइंग में तो आ सकते हैं, बट देन आपने खुद दुनिया नहीं देखी, खुद आपने कुछ एजुकेशन हासिल नहीं की. तो आई वुड एंड देन आपने पूरी फ्लाइंग की और उसके बाद लेट्स से गॉड फॉरबिड खुदा ना खास्ता आपको कोई एक्सीडेंट हो जाता है या आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो देन यू आर ऑफ नो गुड. फिर आप फ्लाइंग से भी गए, फिर आपके पास वो भी नहीं है, और फिर आपकी एज भी उस तरह की निकल चुकी होती है. तो इट इज बेटर टू go for your basic education first and then go for your flying profession. Yes, why not? I remember मैं अकेडमी में था उस वक्त. ऑल पाकिस्तान डेक्लेमेशन हुआ. ऑल पाकिस्तान डेक्लेमेशन में कॉन्टेस्टेंट्स जितने भी थे फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान, they came and visit, and they got the opportunity to fly with us. It was the air headquarters gave them the permission, and it was a long cumbersome process जिसके बाद उनको permission वो मिली थी. And उसके बाद I don't know whether it is being followed. आजकल होती है, फॉलो नहीं होती, but they got the opportunity to fly for about 15-20 minutes. हमने उनको थोड़ा सा वो किया था, तो they were really happy and they said that it was very good. But yes, देखिए आपने यूथ की जो ना एक हीट निकालनी है, उस हीट को किस तरह से निकालना है आपने. अब आप देखें ये जो बाउंसिंग कासल्स होते हैं जिसमें बच्चे को, तो जो बच्चा ज़रा बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, आप उस पर उसको डाल देते हैं और वो जाकर टकरे मार रहा होता है, एंड देन व्हेन ही कम्स आउट ही इज रिलैक्स, बड़ा पुरसुकून होता है. तो ये एक दिस इज वन ऑफ द थिंग्स फ्लाइंग प्रोफेशन में, एंड इट इज एन अचीवमेंट ऑल्सो. यू कैन कम बैक एंड बूस्ट अबाउट इट दैट यू हैव फ्लोन एंड थिंग्स लाइक दैट.
I personally feel that एक environment के साथ एक उसके साथ जो है ना चीज़ें change होती हैं and one should be ready to accept those changes. If I जिस तरह मैं अभी थोड़े दिन पहले क्लिप देख रहा था उसमें कि वो मज़ाहिया वो था वो कह रहा था कि हमारे माँ बाप हमें कहते हैं कि हम जो थे हम कंदीलों में और मोमबत्ती में पढ़ाई किया करते थे, भाई दिन में क्यों नहीं किया करते थे? तो मैं वो दैट्स टुवर्ड्स लाइटर साइड, बट उसकी एक रिक्वायरमेंट मतलब उस एनवायरनमेंट की एक डिफरेंट थी, अभी की डिफरेंट है. अभी पीपल आर मोर into computers, more into mobiles, more into activities which are not जिसे कहते हैं ना फिजिकल नहीं है. मतलब फुटबॉल भी खेल रहे हैं तो वो कंप्यूटर पे खेल रहे हैं, मोबाइल पे खेल रहे हैं, क्रिकेट भी खेल रहे हैं तो वो उसी पे खेल रहे हैं, या मुल्क फतह भी कर रहे हैं सर, मुल्क फतह भी कर रहे हैं तो इसी के ऊपर कर रहे हैं. तो ऑल्दो उससे उनका अपना वो बढ़ता होगा, मैं उसके ऊपर कोई अंडरमाइन नहीं कर रहा उसको, बट पीपल शुड बी मोर आउट गोइंग. आई थिंक फिजिकल बहुत ज़्यादा होना चाहिए. एंड मोटिवेशन जो है वो पहले इतना कंपटीशन नहीं हुआ करता था. लाइक आई रिमेंबर when I did my matric, a first divisioner was a first divisioner. ठीक है, मतलब 60% के ऊपर फर्स्ट डिवीजन होती थी. 60% जो लेके आता था वो फिर खुशी मनाता था, वो खानदान में उसका नाम होता था. आज फर्स्ट डिविजनर कोई नहीं है. आज ऑल एज टाइप है, और ऑल एज जो है वो 90% प्लस टाइप वो है. परसेंटाइल सिस्टम है, उसमें बच्चा जो है वो सिर्फ किताबों में ही लगा रह जाता है. क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि बच्चे में कंप्लीट एक होलसम किस्म का वो होना चाहिए, जिसमें उसकी इंटेलेक्ट लेवल भी होना चाहिए. ही शुड बी स्ट्रीट स्मार्ट ऑल्सो, he should be physically fit also, and he can only be physically fit if he involves into physical exercises. He cannot be physically fit otherwise. So एक wholesome किस्म की बच्चे में थोड़ी सी चीज़ें अभी लैक मुझे लगता है कर रही, क्योंकि हम क्रिकेट का सीजन होता था तो हम गली में क्रिकेट खेल रहे होते थे, हॉकी का सीजन होता था हम गली में हॉकी खेल रहे होते थे. उस वक्त इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था अवेलेबल जो आज है. जो आज आपको क्रिकेट ग्राउंड्स मिलते हैं, और तो कम है, मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक को मिल जाते हैं, बट जितनों को अवेलेबल हैं, हाँ, एज कम्पेयर टू देन, बिकॉज उस जमाने में मेरा नहीं ख्याल कि इतनी फैसिलिटीज अवेलेबल थी जितनी आज हैं, जितनी आप आज अवेल कर सकते हैं. तो मेरा ख्याल है कि it will be undermining today's generation with our if you compare it with our generation. उस वक्त कंपटीशन कम था, इस वक्त कंपटीशन ज़्यादा है. उस वक्त पॉपुलेशन कम थी, उस वक्त अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा थी. उस वक्त एडमिशन्स आपको इन प्रोफेशनल कॉलेजेस फर्स्ट डिविजनर को मिल जाते थे. 60%, 59% के ऊपर मेरे ख्याल से थर्ड लिस्ट लगी थी, और 59% का जो बच्चा था उसको एडमिशन मिल गया था NED में. मुझे याद है कि मेरा एक दोस्त था जो कि उस्ताद मोहम्मद बलोचिस्तान में से आया था, एंड ही वाज हार्डली सेकंड डिवीजन एंड ही गॉट द एडमिशन NED. तो उस जमाने की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हुआ करती थी, आज की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है. आज के बच्चे को किताबों में हमने खोद दिया है, हमने उसके लिए हमने कहा है कि बस तूने, क्योंकि हम बेसिकली रिजल्ट ओरिएंटेड सोसाइटी है. हम चाहते हैं कि रिजल्ट अच्छा आ जाए बच्चे का, तो बच्चे को आप होलसम उसको जो टोटल एक वो होना चाहिए वो नहीं देख रहे हैं. हम उसको देख रहे हैं कि इसने कितने एज लिए हैं, कितने ए स्टार्स लिए हैं. Alhamdulillah, I've got 3 sons, and I can very easily claim that I have never demanded from them A's and A stars. I've always demanded them to be above that average line. I've always demanded them to be wholesome. I've been able to achieve it or not is a different
स्टोरी, बट मेरी डिमांड कभी भी ये नहीं रही कि बच्चा जो है वो टॉप करे और सिर्फ टॉप करने के चक्कर में वो किताबों में खुबा रहे। I miss the most is वो खैर अब सोशल मीडिया ने और इसने आपको एक दूसरे के करीब कर दिया, बट जो फिजिकल कॉन्टैक्ट्स होते हैं विद योर फ्रेंड्स, विद योर कोलीग्स, दैट आई मिस द मोस्ट। देन आई विल नॉट से फ्लाइंग बिकॉज फ्लाइंग की भी एक एज होती है, बट आई यूज्ड टू बी वन ऑफ द पर्सन जो कि फ्लाइंग जब करता था तो बिल्कुल खोतों की तरह फ्लाई करता था, बिकॉज दैट वाज ऑलवेज माय, जैसे कहते हैं ना कि मैं फ्लाइंग करनी है, मैंने आई वाज ऑलवेज अवेलेबल फॉर फ्लाइंग, आई वाज ऑलवेज अवेलेबल फॉर एनी फ्लाइंग ड्यूटी दैट कम्स माय वे। I don't know how to relate it, but I think ये मेरे नसीब में था, और क्योंकि मैंने कोई प्लान नहीं किया था, मैंने कोई वो नहीं किया था कि मैंने फ्लाइंग करनी है और मैंने एयरफोर्स ज्वाइन करनी है, और बट ऑल्दो मैंने एंजॉय बहुत किया, ऑल्दो मैंने आई चेरिश द मेमोरीज ऑफ माय एयरफोर्स डेज, but it is not an easy profession. Let me tell you, this is not an easy profession. You have to be on your guards every moment. आप एक गलत step can slide you down by thousands of feet, and so I was lucky, and I was अल्लाह ताला ने करम किया और मेरे बुजुर्गों की दुआएं मेरे साथ रही कि मैं नो मेजर एक्सीडेंट, नो नथिंग, स्मॉल लिटिल इंसिडेंट्स तो होते ही रहते हैं इस प्रोफेशन में। जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो धूप भी लगेगी आपको, जब आप रोड पे जाएंगे तो आपको जो इंसिडेंट्स तो होते ही हैं, बट नो मेजर, नथिंग एट्रीब्यूटेड टू माई पर्सनल, और जो ह्यूमन फैक्टर जिसे कहते हैं, हम अपनी टर्म में ह्यूमन फैक्टर कहते हैं कि ह्यूमन फैक्टर एट्रीब्यूटेबल एक्सीडेंट जो है उस तरह का कोई वो नहीं था। हमें ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई इंस्पिरेशन बनाता है या कोई, ये तुक्का था जिस पे तो मज़े इत्तेफाक था। मैं बेसिकली मैं सच बताऊं अगर आपको, तो जब हम घर की एक माहौल होता है ना, उसमें था कि अच्छा मगरिब हो गई है तो घर में अभी तक वापस नहीं आए, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, कब आओगे, ये क्या कर रहे हो, पढ़ते क्यों नहीं हो, तो ये रिस्ट्रिक्शंस हुआ करती थी उस ज़माने में ख़ास तौर पे। अब तो आप कंप्यूटर के सामने लैपटॉप लेकर बैठे होते हैं बच्चा, तो आपको ये नहीं पता होता ये बच्चा क्या कर रहा है, और आप कहते हैं पढ़ रहा है, हो सकता है वो चैट कर रहा हो किसी के साथ, हो सकता है वो किसी और साइट के ऊपर कुछ और कर रहा हो सकता है वो पढ़ ही रहा हो, तो यू ट्रस्ट दी गाय, यू ट्रस्ट योर किड्स बाय सेइंग कि हाँ ठीक है तो पढ़ रहा है भाई। वो उस ज़माने में चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत ज़्यादा होते थे, तो हर बच्चा जो है वो चेक्स एंड बैलेंसेस को इतना पसंद नहीं करता, एंड सेम वे इट वाज विद मी आल्सो, एंड आई सेड यार चलें एयरफोर्स में चलते हैं, वहाँ पर कोई पूछने वाला तो नहीं होगा कम से कम। मगर ये मेरी खाम ख्याली थी, क्योंकि एयरफोर्स में जितना ज़्यादा या आर्म फोर्सेस में जितना ज़्यादा पूछा जाता है और जितना ज़्यादा चेक रखा जाता है आपके ऊपर, उतना चेक तो हमें घर में उसका तो आश्रय शीर भी हमें नहीं मिलता था यहाँ पर। I would say that armed forces, like I said in the beginning also, it is cradle to grave. Throughout आपको लेकर चलती है। आज
मैं जो कुछ भी हूँ वो एयरफोर्स की वजह से हूँ। और मेरे साथ ऐसे ऐसे मेरे कोलीग्स रहे हैं जो जिन्होंने राइज़ किया है थ्रू आउट, मेरे साथ मुझसे ऊपर गए हैं और बहुत हम तो कराची के इंग्लिश स्कूलों से पढ़े हुए, इंग्लिश मीडियम स्कूलों से पढ़े हुए, को एजुकेशन स्कूलों से पढ़े हुए लोग थे, मगर वो लोग थे जिन्होंने जो पहली दफ़ा टेबल पर बैठे थे तो उनको ये नहीं पता था कि एक टेबल के ऊपर कांटा और छुरी लगी हुई है तो इसका क्या मकसद है। आज वो लोग बहुत मतलब माशाल्लाह से अपनी मेहनत से बहुत बड़ी बड़ी जगहों पर हैं। It is island in the ocean of corruption. I would say that armed forces, air force, I can very easily say, I can say about the armed forces that it is island in the ocean of corruption. कि हम पर इतनी ज़्यादा चेक्स होते हैं कि हम अगर कोई गलत काम करना चाहें भी तो नहीं कर पाते और नहीं कर सकते, और उसके बाद फिर वो हमारी घुट्टी में पड़ चुकी होती है कि गलत काम नहीं करना है, क्योंकि आप इसी तरह चल रहे होते हैं फिर all of a sudden you can't change yourself. All of a sudden when you are like 45, 50, you can't change yourself. तो मैं तो समझता हूँ कि आर्म फोर्सेस और एयर फोर्स इन पर्टिकुलर, आर्म फोर्सेस इन जनरल इज द बेस्ट प्रोफेशन फॉर a Pakistani kid who really wants to venture into new things.